ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہمارے شیخ مرتضیٰ بھائی کا ہم شکریہ کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب کو طاہر بھائی عامر صاحب کو یہاں تشریف لائے اور بلائے، اور اس سے سیدنا مفضل سیف الدین صاحب سے پہلے سیدنا محمد برہان الدین صاحب بھی جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کے والد محترم نہیں آئے، میں عامر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، ناچیز وہ ہے کہ سیدنا برہان الدین صاحب کے ساتھ اور ان کی استقبالیہ اور سب میں الحمدللہ میں برابر شریک رہا ان کے سارے پروگراموں میں، تو مجھے یہ شرف رہا ہے، الحمدللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کا بھی پورے ہماری برادری کی طرف سے یہاں علیگرین موجود ہیں، مولانا برکت اللہ سوسائٹی آل بائی ایسوسیشن، اور ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور اس یہاں کی مجلس سے ہم آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا برہان الدین صاحب بھوپال آئے، وہ ان کا آخری سفر تھا، اس کے بعد نہیں آئے۔ سیدنا مفضل سیف الدین صاحب کو بلوائیے، ہماری سوسائٹی ان کا بھی زوردار استقبال کرے گی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، مجھے پھر حکم ہوا ہے کہ میں آپ سبھی سے درخواست کروں، یقیناً آپ کی معلومات اور آپ کی نالج کا ہم یہ پوری گیدرنگ جو ہے وہ مستفید ہونا چاہتی ہے، لیکن وقت کی پابندی ہے۔ ابھی صرف 8 اسپیکرز نے اپنی بات رکھی ہے، تقریباً 15 اسپیکرز کو اور بولنا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں اپنی خاص بات کہہ کے بات کو مکمل کریں۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر محمد اعظم صاحب موجود ہیں، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں یونانی شفا خانے کے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، بہت ہی زبردست قسم کا ان کا بایوڈیٹا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ سامعین حضرات، دقت یہ ہے کہ ہمارے تک آتے آتے بات 2-3 منٹ کی ہو گئی، اور میں بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے 5-7-10 منٹ تک لایا تھا، لیکن اب 2-3 منٹ میں بڑا مشکل سا کام نظر آ رہا ہے، لہذا بجائے میں مقالہ پڑھنے کے میں نظم سنا دیتا ہوں، جس میں ساری چیزیں ایک بطور لیگ جو میرے اپنے نظریات ہیں وہ ہے، اور جشن 100 سالہ کے ہی کہنا چاہیے، اسی وقت پر اسی کہنا چاہیے موضوع پر لکھا تھا، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیے دے۔ حالانکہ میرا مضمون قدرے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ دلچسپ تھا، کیونکہ مجھے روداد زمانے طالب علمی کا حکم ہوا تھا کہ اس پر کچھ لکھے، تو میں آپ کو علی گڑھ کی زندگی کے کچھ شیڈز دکھاتا، اور میرے اپنے جو کچھ وہاں پہ جو تجربات اور مشاہدات تھے ان سے میں آپ کو آشنا کرانے کی کوشش کرتا بطور ایک طالب علم۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایک اختر انصاری کا بڑا مشہور شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن میں نے اس کو بالکل اس کی تحریف کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ ملاحظہ فرمائیے کہ یاد ماضی حسین ہے یا رب، کہ یاد ماضی حسین ہے یا رب، دل کے بے حد قرین ہے یا رب، چھین مت لینا حافظہ میرا، زیست اس کی رہین ہے یا رب۔ تو وہ علی گڑھ کی جو یادیں ہیں وہ میرے دل کی بہت قریب ہیں، اور وہ اگر یادداشت ہمارے ذہن سے نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں خیر۔ بہرحال میں جو اپنے جو تاثرات ہے اس نظم کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ پڑھ کر آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو علی گڑھ سے جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تمام سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک لاحقہ بھی ہوتا ہے علیگ کا۔ تو علیگ کا جو ہے ایک جو کچھ ہو سکتی ہے، علیگ کیا ہوتا ہے، جب آپ آخری سطور آپ کو سنا کے میں یہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کیا لکھوں، وہ سب جو حافظے میں محفوظ ہے اس کے لیے الفاظ کم ہیں، کیونکہ صرف واقعی ہی نہیں بلکہ بہت سے احساسات، جذبات، عقیدتیں، قدورتیں، رشتے ناطے، احسانات وغیرہ اس دورانیے سے منسوب ہیں جن کو الفاظ بیان اور عیان نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ بدمعاشیاں بھی ہوئی ہیں، جن کے لیے ایک شعر میں کہتا ہوں کہ جنون شوق میں ہوئی کچھ لغزش اعظم، جنہیں اب سوچ کر شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں ایسی لغزشیں بھی ہوئیں۔ بہرحال تعلیم تو کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بہرحال تعلیم تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں،
मगर तरबियत, तहजीब, अदब व आदाब, तमीज़, बरजस्तगी, बजला संजी, तर्ज मुआशरत, तर्ज जिंदगी, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज फिक्र एहसास, हुस्न सलूक, फहम व फरासत, तख्लीकी क़ुव्वत, तवानाई, खुद एतमादी, खुश अखलाकी, शाइस्तगी अगर कहीं मिलती है तो वो अलीगढ़ है। उस नज्म के चंद बंद और फिर ज़हमत तमाम की बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, कि बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। 100 साल मना रहे कि बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। गुजरी अभी फकत है 100 साल की ही मुद्दत, गुजरी अभी फकत है 100 साल की ही मुद्दत। एक दर्सगह की खातिर कुछ भी नहीं है वक़्त, एक दर्सगह की खातिर कुछ भी नहीं है वक़्त, लेकिन यकीन है महकम बढ़ती रहेगी शोहरत, यानी कि ता क़यामत कायम रहेगी रिफात। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। ये शहरे जुस्तजू है, ये शहरे आरज़ू है, हर शख्स का शिगुफ्ता अंदाज़े गुफ्तगू है। हुब्बे वतन में रक्सा हर जिस्म का लहू है, यानी वक़ार अपना अपनी ये आबरू है। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। दुनिया में सबसे आला, दुनिया में सबसे न्यारा ये जामिया हमारी, दानिश कदा हमारा, सैयद के इस चमन को हम सब ने है सवारा, यानी कि जहाँ से बढ़कर हम सबको है ये प्यारा। बढ़कर नहीं अलीग से अपना कोई हवाला, एक दिन मना गया। यहाँ सुबह भी निराली, यहाँ शाम भी निराली, पाता है दौलते फन हर एक यहाँ सवाली। अदना भी आ गया तो वो बन गया है आली, यानी किसी का दामन रहता नहीं है खाली। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। मुस्लिम हो या कि हिंदू हर एक है बराबर, पाता यहाँ सुकून है सबका ही क़ल्ब मुस्तर। ये दर्सगाह क्या है इल्म का समंदर, यानी कोई है मोती, यानी कोई है गौहर। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला। और हमको यहाँ मिले थे हर रोज दर्स इम्का, हमने यही किए थे कितने ही अहद पैमा, कामिल ही बने हम किस्मत में हम है, किस्मत पे हम है नाज़ा, यानी हम आदमी थे इसने बनाया इंसान, यानी हम आदमी थे इसने बनाया इंसान। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, इल्म और हुनर का दीपक इसने हमें बनाया, तहजीब और तमद्दुन का पाठ भी पढ़ाया। भारत का मान हमने दुनिया में है बढ़ाया, यानी कि अजमतों का नगमा है गुनगुनाया। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला। कितने अजीम लीडर, कितने अजीम रहबर, जो भी जहाँ रहे हैं बनकर रहे हैं महवर। सारे अमल के मैदान हमसे हुए मुनव्वर, यानी अलीग सारे दिखला रहे हैं जौहर। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला। और आखिरी बंद में से कि हम सब जुनून के पैकर, अहले खिरत के लश्कर, तहजीब के पैगंबर, तालीम के हैं खूगर, हर हाल में बनेंगे भटके हुओं के रहबर, यानी अंधेरी शब में हम मिसले माह व अख्तर। बढ़कर अलीग से कुछ अपना हमको अजीज तर है, हमको अजीज तर है ये बज़्म इल्म दानिश, कि हमको अजीज तर है ये बज़्म इल्म दानिश। दरबार इज़्ज़ी में इतनी है बस गुजारिश, हो जाए इस पे उसकी वो फैज की कशाइश, यानी किताब क़यामत कम हो न इसकी ताबिश। बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला। और गाजी वली साहब हमारे जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के नायब सदर हैं, स्टेज पे तशरीफ लाए। गाजी तशरीफ लाए। चाहे मैं जरूरी नहीं समझता था, लेकिन समझता भी हूँ कि अभी जलसा चलता रहेगा, लेकिन कभी कभी ये जरूरत महसूस होती है ना
ये इधर पतली गली से पीछे जा सकते हो, लेडीज को जाना हो तो उधर चले जाए, क्योंकि ये लोग बहुत देर तक चलाएंगे जलसा। तो मैं इसलिए चुपचाप से उठ के जा रहे हैं, अगर किसी को जाना हो तो। नज़्म पेश की। हम अलीग जो लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं, उन्हें अपने नाम के आगे PhD या DSc लगाने से बेहतर लगता है कि हम उसके आगे अलीग लिखें, और इससे हम सभी को एक अजीब सा एक एहसास होता है। और मैं यहाँ जब बैठा था तो मुझे बड़ी हिचकिचाहट थी कि इतने लर्नेड लोगों के बीच में यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक तरह से फख्र भी था कि मैं अलीग हूँ, ये तो हैसियत से मैं यहाँ मौजूद था। बहरहाल बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दरखास्त करूंगा एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम परवेज बारी साहब से कि वो तशरीफ लाए। मेरा मुकाला इंग्लिश में है और इसका उन्वान है सर्वाइवल ऑफ AMU इन द एरा ऑफ हेट। Respected guests and on the dais and off the dais. Today we have all gathered here to commemorate the 100 years of establishment of our alma mater Aligarh University, Aligarh. Today we are living in an era of hate all around. Minorities, that is especially Muslims and Dalits, are being targeted by the ruling class at the center and state alike with impunity. While in British India, Muslims were also being targeted at the times of Sir Syed Ahmad Khan, but he devised ways and means to tame this hostility and save the Muslim Ummah from further annihilation after 1857 revolt. He did not let Muslims to take on the British head-on, but took the route of reconciliation and put his core religions on the path of revival of self-esteem by engaging them to modern Western education coupled with Dini Taaleem, with the Holy Quran being their sole guide. Hymns from Sir Syed Prince. Najmul Huda, an IPS who was educated at the MU and JNU and presently posted in Tamil Nadu, in an article wrote, even as a Biryani Sherwani festival is celebrated every year on 17th October to mark his birth anniversary, Sir Syed Ahmad Khan's religio-philosophical ideas, social thought, political attitude and educational endeavors remain buried under terms of prejudices of his professed devotees. He says, Islam may not be a political religion, but Muslims have a religious passion for politics. So let's surmise his response to Hindutva. Would he go on a path of confrontation or conciliation? Probably he would do now. Sir Syed would do now what he did then to placate the British hostility post 1857, the first war of independence. His pragmatic wisdom and made him urge Muslims into political celibacy for rubbing the British on the wrong side again would have brought untold misery far in excess of what had just befallen them. Today depoliticization would be an ineluctable imperative for sailing through the tide of Hindutva. In the face of this subaltern society, Sir Syed would advise them political fortitude. He would be frightened on the societal imprudence of vituperative religio political rhetoric which has been the hallmark of the Muslim public discourse, and considering how perceptive he was, he would look askance at their expedient constitutionalism, best illustrated in the preamble reading chorus. He would caution Muslims against going on a self-defeating offensive on such embarrassing issues as Shah Bano and Triple Talaq. Sir Syed had kept under the hostility of the orthodoxy. He had to capitulate before them and abandon the agenda of social reform. In order to neutralize their opposition to his college, he would regret it and try to seize the initiative from their hands. Najmul Huda says that in 2006, such a committee report would have sent shockwaves across the Muslim community, since it showed that they had slid lower than the lowest in some indices. Instead, these findings were welcomed with such malicious glee, insofar as it gave them a stick to beat the state with discriminating against them. Experts and political commentators in the battle to retain its mighty character, AMU was denied even elementary justice in 1965, and it is the same, and it was the same in 2016.
there is time still for the present regime at the center to reverse its stand before the Supreme Court. Noorani states that nearly a century later, AMU is facing destruction by malevolent and concerted attacks on several fronts. In an article titled History of Aligarh Muslim University, he wrote that this is the culmination of a process that began in 1965 when a violent assault on AMU's Vice Chancellor provided an opportunity to the rank careerist M.T. Chhagla, the then Education Minister, to advance his political career. In a judgment of shocking error, Noorani wrote, the Supreme Court upheld the law that Chhagla had got enacted against the views of Congress Muslims and despite the doubt from Prime Minister Lal Bahadur Shastri. It accepted the view that AMU was not established by Muslims but by Parliament. Aziz Basha was Union of India case. और इसके बाद गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम जिया फारूकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। जिया फारूकी साहब तशरीफ फरमा, हमारे मोअज़्ज़िज़ हज़रात और सामने बैठे हुए, मैं कोई मकाला नहीं पेश करूंगा, मकाला तो बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो तकरीर का आदमी भी नहीं हूँ, सिर्फ मुबारकबाद देने आया हूँ आदि आज़म साहब को। जैसे अभी हमारे तस्नीम साहब ने कई मरतबा कहा कि अलीगेरियन अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक एजाजी अलीगेरियन भी होते हैं, मिसाल रजिया बाजी बैठी हुई है, मुझे भी लोग एजाजी अलीगेरियन कहते हैं कि मैं नौटपन सही कहीं अलीगढ़ से जुड़ा रहा, तो एजाजी अलीगेरियन भी यहाँ भी बहुत से होंगे मैं समझता हूँ जिन्होंने अलीगढ़ में बाकायदा पढ़ा तो नहीं लेकिन अलीगढ़ तहरीक से जुड़े जरूर रहे, तो इसलिए हम भी फख्र महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ सोच जो है उसके कहीं करीब है हम लोग। मैं एक सवाल थोड़ा सा है कि सैयद अहमद खान ने 1857 के बाद ये बार बार क्यों कहा कि हमारे यहाँ तालीम नहीं दे, इसलिए हंगामा खड़ा हुआ। तालीम तो थी, सैकड़ों हजारों उलमा किराम जो थे उनको अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया। दरअसल था क्या, औरंगजेब आलमगीर के जमाने में या मुगलों के जमाने में एक तालीम का बहुत अच्छा निजाम था, लेकिन औरंगजेब के पतन के बाद जो दिल्ली में मुसीबतें आई और हिंदुस्तान पर, तो उससे हमने ये समझा कि ये सारी मुसीबत इसलिए है कि हम खुदा से दूर हो गए। चुनांचे उसी जमाने में वलीउल्लाह तहरीक भी सामने आई और उसने कहीं हमको कि जो एक कहा जाता है कि इल्म से बेहतर कुरान है, बाकी कोई इल्म नहीं, ये हमारी सोच आज की है। तो उसने किया ये कि हमारे उलमा तो पैदा होते रहे, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल बालाकोट की शहादत ये जो बाकी गवाह है, वही 1857 में उलमा हमारे शहीद भी हुए। असली उलूम जो थे वो कहीं हम जो राजा राम मोहन राय ने 1926 में शुरू किया 18 वो कहीं हमारे यहाँ नहीं तहरीक दी थी उस तरह की, चुनांचे सैयद ने उसी को शुरू किया और उसी के नतायज आज हमारे सामने हैं, चाहे बम्बई का फलानी कॉलेज हो, भोपाल का सैफिया कॉलेज हो, हनीफ कॉलेज हो, फला कॉलेज हो, इस्लामिया कॉलेज हो, ये सब उसी की देन है, उसी सैयद की तहरीक की देन है और उसी की मुखालफत उस जमाने में हमारे मजहबी उलमा ने की। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गुजारिश करनी थी जनाब इकबाल मसूद साहब से, लेकिन मेरे ख्याल से वो बाहर तशरीफ हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब आरिफ अजीज साहब से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हजरत बहादुरी ख़वातीन और हजरत ये 5-10 मिनट में तो कोई बात होती नहीं, अभी तस्वीर आए थे हमारे पहले, तो ये स्पीकर लोग हैं, ये लोग कर लेते हैं, मैं तो फूटा फूटा लिखता हूँ, बोलने में बहुत तारुफ होता है, इसलिए मैं बीच में से कोई तोड़ दे, बीच में से काट दे और यही उससे डिस्टर्ब होता है। बाद में कोशिश करता हूँ कुछ अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। जी, सर सैयद तहरीक के बाद मुगालते वो उनका इज़ारा, ये इसका उन्वान है। अभी पूरी बात मैं कर सकूंगा या नहीं, बाहर
सर सैयद अहमद खां पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। उनकी मकबूलियत और अहमियत की वजह उनका वो तालीमी काम है जिसने 20वीं सदी के हिंदुस्तान पर गहरे असरात मुरतब किए। वो एक रोशन दिमाग और शख्सियत के मालिक थे जिसने कारनामे अंजाम दिए और जिससे कोताहियां भी सरजद हुई। सर सैयद की फिक्र और नजर के बाद गोशों से कम या ज्यादा इख्तिलाफ की गुंजाइश पहले भी थी, आज भी है, क्योंकि अंबिया किराम के सिवा दुनिया में कोई फर्ज बशर ऐसा नहीं जिसके कौल फेल से इख्तिलाफ का जवाब ना निकलता हो। लेकिन ये इख्तिलाफ इस्लाम पर मबनी होना चाहिए, इस्लाम तराजी पर नहीं। सर सैयद के बारे में उनके मोतज़ीन से ज्यादती ये हुई कि उन्होंने अव्वल सर सैयद के दौर और उसके तकाज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। अगर इसे पेश नजर रखते तो शदीद तनकीद या बदगुमानी की नौबत नहीं आती। या सर सैयद ने बाकायदा आलिम न होने के बावजूद दीन के बारे में जो कुछ तहरीर किया उसका मकसद बेहतर तरीके पर पूरा होता वो मुफीद नताइज बरामद होते। हकीकत यह है कि इस्बात और तफरीद का मुजाहरा दोनों तरफ से हुआ। जहाँ तक सर सैयद के जज्बे और तमन्ना का सवाल है तो वो चाहते थे कि इस्लाम की हक़ानियत मुसलमानों पर ही नहीं सारी दुनिया पर वाज़ेह हो। उनका ख्याल था कि मुसलमानों की कमजोरी और पस्ती की बुनियाद मजहब से नावाफियत, जहालत और अवाम परस्ती और जदीद उलूम फ़नून से बेगरबती में पेवस्त है। वो कहते थे कि अंग्रेज फाते और हाकिम हैं, इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अंग्रेज एक तरक्की याफ्ता कौम है, ज्यादा उनका उलूम और फ़नून उनसे सीख कर ही उनका मुकाबला हो सकता है। जब तक मुसलमान असली उलूम जदीद फ़नून से आरास्ता नहीं होंगे एक बालादस्त कौम से मुकाबले में उन्हें पसपाई का सामना करते रहना होगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम इकबाल मसूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। स्टेज पर बैठे हुए मौजूद हज़रात, हम लोग तारीख के एक वाक़े का हिस्सा बन रहे हैं कि जिसके अंदर भोपाल में शायद और हिंदुस्तान के अंदर भी ये पहली बार हो रहा है कि एक बड़ा जलसा हम यूनिवर्सिटी के 100 साला क़याम के तौर पर कर रहे हैं। हज़रात, हर जगह अलीगढ़ के स्टूडेंट मौजूद हैं दुनिया भर में, हमारे शहर में और हमारे मुल्क में भी है। अफसोस ये होता है कि अलीगढ़ के चाहने वाले कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करते हैं जिसमें अलीगढ़ की अहमियत और इज्जत नुमायां हो सके। मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जो हैं हाजी हारून साहब, उन्होंने एक बड़ा ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। यहाँ ये दूसरों के लिए न सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि काबिल अमल भी है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें। बार बार करना चाहिए सर सैयद और अलीगढ़ के बारे में गुफ्तगू, इसलिए कि हमारी नई नस्ल आगाह हो सके कि उन लोगों ने क्या किया था, कैसे वक्त किया था। एक बुरा वक्त अभी भी हमारे सामने है और उस वक्त भी एक बुरा वक्त था। इसके भी दरमियान हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक मजमून लिखा है, यहाँ पर मुख्तसर करने की कहा गया है, इसलिए उसको मुख्तसर पढ़ रहा हूँ। उसका उन्वान है वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामादी है। 19वीं सदी के वक्त में हमारी कौमी जिंदगी फिशार और बहरान के संगम पर खड़ी थी। रास्ते गुम थे और रहनुमा मफकूद, नफ्सा नफ्सी का आलम था। इस आलम इत्तिला में जिस शख्स ने एतमाद और हौसले के चिराग रोशन किए, एक जमहूरी अलीगढ़ तहरीक की बिस्मिल्लाह की, जो मुस्तकबिल के लिए एक शाहरा अजीम बनने वाली थी, उसकी क़यादत के फराइज इस तौर पर अंजाम दिए कि सुबह करना शाम का लाना था जुए शीर का। इस मर्द कलंदर को हम सर सैयद के नाम से याद करते हैं। वो इस कौमी ज़बान से मुतासिर होकर कौमी तामीर के लिए कमर बस्ता हुए
तो जिंदगी के बेशुमार पहलू दाग नजर आए। तहजीब, तमद्दुन, मजहब, सियासत, माशरत, इल्म व अदब, जबान और तालीम, कोई पहलू ऐसा न था जो इस्लाह तलब न हो। सर सैयद ने बेजारी, मायूसी, गुलामाना ज़हनियत और पुराना तकलीफ की जंजीरों में जकड़े लोगों को एक नई सुबह की बशारत दी। उनकी तगोदो, उनके साथियों की जद्दोजहद के जवाब में उन पर कुफ्र के फतवे लगे, लेकिन उनके कुफ्र ने ईमान के नए दरवाजे वा कर दिए और माशरे में अमल और हरकत की एक ऐसी मौजें रवा हुई जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने से होती हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तालीम ही इस मर्ज और मरीजाना ज़हनियत का वाहिद हल है। जिंदगी के मसाइल अक्ल की रोशनी और साइंसी नुक्ता नजर से हल करने का तरीका बताया। मशरिक व मगरिब की बेहतरीन रिवायात और इम्तिदाज से एक नए माशरे की तश्कील का न सिर्फ ख्वाब देखा बल्कि उसमें रंगामेजी भी की। सर सैयद ने ऐसे माहौल में जबकि हक की बात कहना भी गद्दारी था, असबाब बगावत हिंद में बवांगे दुहुल ये दावा किया कि बेचैनी, अदम एतमाद और शोरिश की असल वजह हिंदुस्तानियों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल करना नहीं था, यानी अवामी नुमाइंदों को सरकारी कानून साज असेंबली के अंदर जगह न देना सारी बीमारियों की वजह थी। आज भी हम किसी न किसी हद तक इसी तरह के मसाइल से दोचार हैं। हमारे नुमाइंदे कितने हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सर सैयद के अमल और फिक्र और पैगाम से हमारी चश्मे बातिन तो क्या खुलती, हम अपनी ख्वाब और आंखों को मल कर रह गए। आज हम जब इस यूनिवर्सिटी का 100 साला जश्न मना रहे हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान और अक़लियतों की सूरत हाल बेहतर होने के बजाय बदतर हो गई है। मुसलमानों की जमहूरी अदारों में सिफर होती तादाद और तालीम में पसमानदगी और अहले वतन और कौमी अदारों से दूरी के असबाब अब भी वही के वही हैं। बाकी बातें उसी एक बात का शाफसाना है। इस सूरत हाल में हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि सर सैयद अहमद खान ने हिंदू कौमियत के नजरिए के बीज बोने वालों के साथ भी अपने ताल्लुकात इस्तेवाल रखे और साथ ही ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और इस तरह की दूसरी तंजीमों के कायदीन से बराबर रास्ता कायम रखा ताकि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और सकाफत मुल्क की फलाह और बहबूद में एक दूसरे के साथ इश्तराक की राहें हमवार हो सके। ये उनकी रोशन ख्याली थी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में हमारी जिंदगी जिस फिशार और बहरान के संगम पर खड़ी है और मुसलमानों की हैसियत हाशिए पर आ गई है, ऐसे वक्त में हमारे सामने सर सैयद का ये पैगाम नविश्ता दीवार की तरह है कि अफाम और तफहीम की राह अपनाई जाए। उनसे भी जिनके साथ फिक्री इख्तिलाफात हैं, ताल्लुकात और गुफ्तगू की जाए, उन पर की बातों पर हमदर्दाना तवज्जो दी जाए और अपने मसाइल के तई उनको मुतवज्जो किए जाए। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल होने और सर सैयद के 200 साल होने के ऊपर आज हम तारीख के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं और वक्त सवाल कर रहा है कि क्या हमने सैयद की तरह अपनी जात से बुलंद होकर मोहब्बत और अखलाक से अपनी तहजीब का इरफान हासिल करने की कोशिश की और क्या हमने फराख दिली और रवादारी के साथ जज्बात से बुलंद होकर अपनी जिंदगी के रास्ते मुतय्यन किए और क्या हमने इस तहजीबी बहरान पर जिससे हम दो चार हैं उस तरह हावी होने की कोशिश की जिसकी मिसाल सर सैयद के अमल में मिलती है। शुक्रिया। सदारत के दूर हजरात, मेजबान मोहतरम हाजी मोहम्मद हारून साहब और यहाँ मौजूद सभी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हजरात, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हारून साहब को और इस सोसाइटी के तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं, अरबाब हल्लो अक़्त हैं, उनको कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो कि
ओल्ड बॉय एसोसिएशन को जो काम करना चाहिए था यहाँ की, वो उन्होंने किया है, वो अलीग नहीं है। बहरहाल वो काबिल मुबारकबाद है कि ये हम सबका फरीजा है, और इस कर्ज हसना कह लीजिए, जो भी कुछ कहिए, उसको जो भी अदा कर सके वो काबिल मुबारकबाद है। वक्त कम है, मैंने मकाला तो लिखा है कि असर हाजिर में सैयद के मिशन की महानवियत तो जस्ता जस्ता पढ़ूंगा, उससे कबल ये बताना भी चाहूंगा, और अगरचे उससे कमा हक यहाँ मौजूद सभी लोग वाकिफ हैं कि इस रियासत भोपाल का अलीगढ़ से रोजे अव्वल से जो ताल्लुक था वो आजादी से कबल भी रहा और इंजमाम रियासत के बाद भी उसका सिलसिला जारी रहा है, ताहाल जारी है। वो फैजान जो अलीगढ़ तहरीक का या सर सैयद मिशन का था, उसका सिलसिला हनूज जारी है। मुल्ला सज्जाद हुसैन मरहूम जो सर सैयद सानी कहलाते थे, उनका अब्रे करम अहले भोपाल ही नहीं, तमाम पूरी दुनिया में ऐसा बरसा और ऐसे तिश्नगाने इल्म को उन्होंने तालीम याफ्ता होने या महज़ब और मुअद्दब बनाने की कोशिश की, तो वो भी सर सैयद का ही फैजान था। और वो सिलसिला चलते चलते बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी तक भी आ गया। इसी असना में कितने मुस्लिम मैनेज कॉलेजेस और स्कूल यहाँ पर हैं जो सर सैयद के मिशन की फराइज को अंजाम दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मकाला जो है मैंने बताया जैसे कि उनके मिशन की मानवीयत, मैं बिल्कुल जस्ता जस्ता उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि 5-6 मिनट में उसको खत्म कर दूं। मोहसिन कौम मिल्लत मुज्तहिद असर सर सैयद अहमद खां मुल्क कौम की नशत सानिया के अव्वलीन मायमार थे। उन्होंने इल्मी, अदबी, सहाफती, मजहबी, तहजीबी, समाजी, इस्लाही, साइंसी और तालीमी शोबों में हमागीर, हमाजहत और तारीख साज खिदमात अंजाम दी हैं। वो महज दिले दर्दमंद के हामिल बाशऊर इंसान ही नहीं थे, बल्कि बुलंद पाया मुफक्किर, मुस्लिह, मुअर्रिख, मुसन्निफ, सहाफी, मुतरजिम, मुंतजिम और माहिर तालीम भी थे। उनकी बेलोस तवील और मौसर मुज्तहिदाना खिदमात के सबब उन्हें जदीद उर्दू नस्र, जदीद उर्दू सहाफत और जदीद तालीम का बानी भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद ने असली तकाज़ों, साइंसी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, नीज़ तहक़ीक़ी शऊर और फ़िक्र को राहनुमा बनाकर जिंदगी और समाज के हर अहम शोबे में नई राहें हमवार करके नई मंजिलों तक पहुँचने, कौम को बेदार और बाअमल बनाने की हत्तल मक़सूर कोशिशें की। इस ज़िम्न में उनका सबसे बड़ा कारनामा बतौर मिशन एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम था, जिसने बाकायदा तौर पर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली थी और जो कि उर्दू ज़बान और अदब की पहली शऊरी तहरीक कहलाई, जिसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जिसने महज तालीमी शोबों में ही नहीं उर्दू ज़बान और अदब में भी इनकलाब बर्पा कर दिया। सर सैयद अहमद खां आला तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब, मुतमव्विल और मुअज़्ज़ज़ खानवादे के चश्म चिराग। वो मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज रहे। अंग्रेजों ने उन्हें सर का खिताब अता किया। वो चाहते तो अंग्रेजों की खुशनुदी हासिल करके ऐश व इशरत और फरागत की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जात और जाती ऐश व निशात से ज्यादा अपनी कौम की बदहाली और हिरमा नसीबी का ऐसा गम था जो उन्हें किसी पहलू चैन नहीं लेने देता था। वो हर लम्हा और हर आन कौम के अफराद की तरक्की, खुशहाली, वक़ार और सरबुलंदी के लिए फिक्रमंद रहने लगे। कौम की ज़ुबूहाली ने उन्हें वक्त से पहले बुढ़ा बना दिया। सर सैयद अहमद खां ये जानते और समझते थे कि अंग्रेजों ने आनाने हुकूमत मुसलमानों से हासिल की है, लिहाजा उनके जबरो इस्तबदाद का निशाना भी सबसे ज्यादा मुसलमान ही थे। सर सैयद अहमद को अंग्रेजों की हिकमत अमली और ताकत का बखूबी अंदाजा था। वो इस बात को भी महसूस करते थे कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज अंग्रेज हुकूमत का मुकाबला सेफो तवरो तोपों से नहीं बल्कि तामीरी रवैये और कलम ही से किया जा सकता है। तब्दील शुदा सियासी हालात मुतकाजी थे कि नए हालात में कौम को जोश से नहीं तदब्बुर और होश से काम लेकर नए हथियार यानी जदीद तालीम से आरास्ता होकर नए चैलेंजों का मुकाबला करना होगा।
चुनांचे वो न सिर्फ कौम की फलाह बहबूद और तरक्की और खुशहाली के लिए जदीद तालीम को नुस्खे इक्सीर और राह निजात मुतसव्वर करके दामे दिरमे सुखाने कलमे कदमे हर तरह से मसरूफ़ अमल हो गए, बल्कि अपने रुफ़क़ा इफ्तार को भी इसी मिशन में से मुंसलिक कर लिया। सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दौरान तकरीर कहा था कि वो हिंदुस्तानियों की ऐसी तालीम चाहते हैं कि उसके जरिए उनको अपने हुकूक हासिल करने में कुदरत हासिल हो जाए। सर सैयद अहमद तालीम के कई वसी तर तसव्वुर रखते थे। वो इनफरादी तालीम के बजाय कौमी पैमाने की तालीम के हामी थे। सर सैयद अहमद के जदीद तसव्वुर इल्म से मुताल्लिक़ प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी ने सही लिखा है कि इज्तिमाई और कौमी तालीम का ये हमागीर तसव्वुर उस दौर के हिंदुस्तान के लिए उतना ही नया था जितना आज की सोशलिस्ट सोसाइटी की रूह और असास है। तालीम के कदीम और जदीद तकाज़ों और ज़रूरतों से बदलते तनाजुर पर उनकी गहरी निगाह थी। नई तब्दील शुदा सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने कहा था कि हमारे बुजुर्गों को निहायत आसानी थी कि वो मस्जिदों और खानकाहों के हुजरों में बैठे बैठे क़ियासी मसाइल को दलाइल से और अक़ली बराहीन से तोड़ते फोड़ते रहें और उनको तस्लीम न करें। मगर इस ज़माने में नई सूरत पैदा हुई है जो इस ज़माने के फ़लसफ़े और हिकमत की तहक़ीक़ात से बिल्कुल अलग है। आला तालीम के फैदान के तहत उनका यकीन था कि वो दिन दूर नहीं कि हर जिले में से एक शख्स का कौंसिल में दाखिल होना जरूरी होगा। वो दिन आवेगा कि तुम खुद ही कानून बनाओगे और खुद ही उस पर अमल करोगे। सर सैयद अहमद खान इस तालीमी मिशन ने तारीख साफ किरदार अदा किया और हर दानिश्वर ने उसे बनज़र इस्तेहसान देखा। बतौर जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन में छोड़ रहा हूँ। बिलाशुबा सर सैयद अहमद खान की तवीम गराकद और बेलोस खिदमात काबिल सब तहसीन और काबिल तकलीद हैं। हमेशा आप भी आ जाइए ना, हमेशा कहीं भी जाओ बुढ़ापे में सब दूर कर बैठे हो। इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। नहीं बनेगा इसलिए भी बहुत कीमती होगा ना, बहुत ही नायाब सूट है ये। आप भी ग्रुप में रहिए। आप ही पकड़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि माइक में यहाँ अभी अरुण साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तकरीब में मदद किया, जज़ाकल्लाह। और अलीगढ़ वालों से के लिए एक बात ये अर्ज करना चाहती हूँ कि मैं सर सैयद अलीगढ़ और भोपाल के ताल्लुक से एक किताब लिख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि भोपाल में जितने अलीगढ़ वाले हैं उन सब के नाम उसमें शामिल हों। पुराने तो बहुत से मेरे पास हैं मगर नए अली बरादरान और बहनों के नाम नहीं हैं, वो मुझे पहुंचा दें। शुक्रिया। मेरे मकाले का उन्वान है अलीगढ़ तहरीक और बस मुख्तसर लिख के लाई हूँ मैं।
19वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान में सियासी और माशरती जिंदगी में हलचल और उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। नतीजे में कई तहरीकें वजूद में आई, उनमें एक अलीगढ़ तहरीक भी है। इस तहरीक के बानी सर सैयद थे, इसलिए इसको सर सैयद तहरीक भी कहा जाता है। यह तहरीक अपने वक्त की सबसे ज़ूद असर तहरीक रही है। इस तहरीक ने मुसलमानों में पैदा होने वाले जमूत को तोड़ा और मुस्तकबिल की तामीर की फिक्र की। सर सैयद ने इस फिक्र के नतीजे में गाजीपुर में एक मदरसा और साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। सोसाइटी कायम करने का मकसद इल्म नौ से नौजवानों को मुतारफ कराना था। साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम मानवी तौर पर अलीगढ़ तहरीक का नुक्ता आगाज है। ये आपको शायद मालूम हो कि सिकंदर बेगम ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम करने की खुशी में सर सैयद को अलमास की अंगूठी भेजी। साइंटिफिक सोसाइटी के बड़े दूरदर्श नताइज सामने आए। मुल्क के तूल अर्ज में ऐसे जैसे कई अदारे और सोसाइटियाँ कायम हुई। अलीगढ़ तहरीक के इब्तिदाई अवामिल 1857 में कौम की ज़ुबूहानी और मुल्क के हालात में पहना है। सर सैयद को मज़हब और तारीख से गैर मामूली दिलचस्पी थी। उनकी शख्सियत में कदीम और जदीद दोनों का इम्तिजाज मिलता है। उनको अंदाज था कि जोर जबरदस्ती किसी कौम की आदत को बदला नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने जो लाए अमल मुंतखब किया वो तालीम का उसूल था। मजहबी तालीम के साथ जदीद तालीम, साइंस और उसके मुतालिक उलूम व फ़नून से वाक़ियत को ज़रूरी जाना। उस पर अमल पैरा होने के लिए सर सैयद ने अंग्रेजी तालीम के उसूल जानने के लिए कई तालीमी इदारों का दौरा किया। मदरसतुल उलूम कायम करने के साथ ही उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की। उसका पहला जलसा दिसंबर 1886 में अलीगढ़ में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के इजलास मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होते थे। उनमें नज़में पढ़ी जाती थीं। ये नज़में अलीगढ़ तहरीक के मिजाज को सामने रखकर रखी गईं। इन नज़मों से कौम में हुब्बुल वतनी और तालीम के तईन बेदारी पैदा हुई। अलीगढ़ तहरीक में शेर अदब एक वसीले के तौर पर सामने आया। उर्दू की अदबी तहरीकों में अलीगढ़ तहरीक सबसे अहमगीर तहरीक। उससे पहले शायरी में गुलो बुलबुल, हिजर विसार के मजमून के अलावा कुछ न था। अलीगढ़ तहरीक से मुतासिर शायरों के यहाँ मुनज़्ज़म इज्तिमा और माइशती एहसास नुमाया नजर आता है। अलीगढ़ तहरीक ने शेर अदब के जरिए कौम में इस्लाही जज्बे को फरोग दिया। कौमी शऊर और रोशन ख्याली के असरात पैदा हुए। अदब और शेर के जरिए कौम में सियासी, समाजी इस्लाह, अमन व अमान और मजहबी अकायद दुरुस्ती का जज्बा कारफरमा हुआ। अलीगढ़ तहरीक एक इज्तिमाई तहरीक थी। उसने न सिर्फ मुस्तक़िल रिवायत पैदा की, सैयद को यकीन कामिल था कि सिर्फ जदीद तालीम या सिर्फ मजहबी तालीम से कौम तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने दोनों तरह के उलूम हासिल करने पर जोर दिया। उनका कहना था इस खारिज से फारिग तहसील तालिब इल्म के दाएं हाथ में कुरान होगा और बाएं हाथ में फलसफा और नेचुरल साइंस और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज होगा। सर सैयद ने जिंदगी भर कौम की रहबरी की, उसको पस्ती से निकालने के लिए जद्दोजहद की। अपने इस मकसद के लिए उन्होंने हजार तरह के मुखालफतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। उनके पाए इस्तक़लाल में जंबिश नहीं हुई। सर सैयद को किसी जाओ मर्तबा शोहरत की ख्वाहिश नहीं थी। कौम के किस्मत के सितारे को बुलंदी पर पहुंचाना उनका मकसद था। अलीगढ़ की तहरीक की आबियारी उन्होंने अपने खून और पसीने बहा कर की, जिसके असरात दूर रहे। उन्होंने समाज के हर तबके को मुतासिर किया। कौम के ज़हन और दिल रोशन हुए। उनके कायम करदा कॉलेज के तर्ज पर मुख्तलिफ शहरों में कॉलेज और स्कूल कायम हुए, जिससे इल्म को फरोग हासिल हुआ। ये अलीगढ़ तहरीक की बड़ी कामयाबी थी और है। ये मजबूत रिवायत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। अलीगढ़ तहरीक ने कौमी यकजहती का दर्ज दिया
उससे ज़्यादा अखलाक और खलूस मोहब्बत तहजीब व तमद्दुन को फरोग हासिल हुआ। सैयद के कायम करदा मदरसतुल उलूम और मोहम्मद नहरुद्दीन कॉलेज में तहरीक की मजबूत रिवायत को फरोग हासिल हुआ। आला Honorable Chief Guest, बड़े भाई डॉक्टर वासिफ साहब, esteemed and distinguished guests on the dais and off the dais, all respected guests. क्योंकि यहाँ पे एमयू ओल्ड बॉयज के तमाम जिम्मेदार ऑफिसर्स यहाँ पे हैं और साथ साथ बरकतुल्लाह भोपाली सोसाइटी के चेयरमैन हैं। अभी शुरू में ही एंकर साहब ने तस्लीम साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच दिखाया था। मैं इस ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ कि उनसे एमयू और तमाम लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि एमयू का कैरेक्टर माइनॉरिटी कैरेक्टर को बहाल किया जाए। इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत या एंटी हलफनामे दिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी तारीफ आप लोग करें और उसको जो है आप लोग प्रोटेक्ट करें। दूसरा, इसी प्रकार ने पिछले कई सालों में कई इंपॉर्टेंट फोरम से सर्चर कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने जो है अपोज किया है, खुल के अपोज किया है। और हमारी मुसलमानों की जो तालीमी और सारी जो हालात है सबको मालूम है। यहाँ की तक कि हम SC/ST से भी पीछे चले गए हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। पिछले दिनों में तमाम ऐसे एक्ट एंड ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, चाहे 370 की बात हो, 135 आर्टिकल की बात हो, या NRC CA की बात हो, या एंटी कन्वर्जन की बात हो, या लव जिहाद की बात हो। एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं जो है SC/ST OBC या तमाम जो है दबे कुछ लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तमाम तरह से ये सोशल मीडिया पे जारी हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए प्रोटेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल मैं यहाँ पे सर एक मिनट बस, मैं बरकतुल्लाह भोपाली देखिए बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं इनके बारे में अदनास इंसान में उनके बारे में नहीं जानता, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहीं न कहीं उनको हिस्टोरिकल कन्वेंस उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए हमको अपॉइंट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके जो अब्दुल्ला सिंधी, उनके साथ जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनी उसके फॉरेन मिनिस्टर थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके जो वज़ीर आज़म थे, उनके नाम से यहाँ पे चर्चा होना चाहिए। जो जानकारी के मुताबिक मैं सब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट नेशनल लैंग्वेज या राजभाषा के नाम पे नहीं है, खास के उर्दू हिंदी के नाम से। हम तो अपने उर्दू अरबी पर्शियन की बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक वहाँ पे अरबी पर्शियन के तो डिपार्टमेंट है, लेकिन उर्दू का डिपार्टमेंट नहीं है। यही नहीं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट की बात होनी चाहिए और तमाम मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उर्दू की बात होनी चाहिए। हमारी उर्दू जुबान जो है इंटरनेशनल प्लेन पे जो है 9th का प्लेस है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब मैं समझता हूँ कि अगर कौम के साथ साथ मुल्क की भी भलाई होगी, अगर उर्दू अरबी पर्शियन को अगर प्रमोट किया जाएगा तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है एक हद तक गल्फ कंट्रीज में जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं सिर्फ सब में एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनका कॉल है जो सफिया साहब का कॉल हमारे बहुत दिल के बहुत करीब है। मैं सब उसको पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मुझे देखिए माफ कीजिएगा, मैं तकरीर से खुद बहुत दूर रहता हूँ, तकरीर मुझे करने नहीं आता, मैं खाली खुश पढ़ा हूँ मैं। और लेकिन ऐसा मौका है जिसका मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। ये मेरे पास में सफीर उमर साहब के कम से कम 250 कॉल हमारे पास है, लेकिन उनमें से ये कॉल जो है मैं हर प्लेटफॉर्म पे हर फॉर्म पे जहाँ भी तालीम का ताल्लुक होता है मैं बात करता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जरा आप इसको गौर से सुने। डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू अदर्स, डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू अदर्स इन स्टेट
show your face as the follower of true Islam. Show your face as the follower of true Islam, representing character, knowledge, tolerance and pity. Sir Syed Ahmad Khan, Star of India, पैगंबर ऑफ एजुकेशन. हम उनको पैगंबर ऑफ एजुकेशन कहते हैं क्योंकि उतना बड़ा काम किया तो शायद किसी ने किया है. और उनको ट्रिब्यूट या खराजत अकीदत के तौर पे मैं समझता हूं कि उनके बारे में अगर किसी खानी करने के बजाय तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हर ऐसे गली मोहल्ले में जहां पे तालीम की रोशनी न हो, हर वो जगह पे तालीम का चिराग जलाना चाहिए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. माइक वहां तक पहुंच जाए, मेरी गुजारिश है छोटा माइक वहां दे दिया जाए और नए ख्वाहिशात वहां से शुरू कर ली जाए. अलग से बुलाना और टाइम अपील करना ये देर नहीं. माइक दो भाई. ये तो मैं वहीं से नए ख्वाहिशात जो भी दो लोग फरमाते जाए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बेहतर तो वही होता जो इतने हुआ था कि सिर्फ प्रोफेसर अख्तर साहब ही खिताब फरमाएंगे. आप बोल दीजिए. हम सबकी नए ख्वाहिशात में सबकी तर्जुमानी करता हूँ कि हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ है और आपने जो ये काम किया बहुत अहम काम है. अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल करे और कौम में आइंदा भी इस किस्म के अफराद बाकी रखे जो कौम के अकाली की तारीख को इस तरह जिंदा रखे. शेरन शैली साहब, देखिए सीपीआई के सेक्रेटरी हैं पूरे मध्य प्रदेश के, कम्युनिस्ट पार्टी. यहाँ बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार मौजूद हैं. सैयद साजिद अली साहब तशरीफ फरमा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी जनरल सेक्रेटरी हैं. सब लोगों ने दिल तो बहुत चाहता है लेकिन नमाज का वक्त है. या तो हम लोग कहते हैं तो मजलिस से नमाज का वक्फा करके खाने के बाद में शुरू करें. शेरन शैली साहब, मैं सिर्फ एक बार का बात कहना चाहूंगा. मैं अक्सर कहता हूँ कि खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता आइडियोलॉजी का होता है. तो उस आइडियोलॉजी के रिश्ते से जो कि हक, ईमान, सामाजिक न्याय की बात करता है तो सैयद जी बरकतुल्लाह बोकानी जी, हाजी हारून साहब, हम सब लोग एक बड़े मकसद से जुड़े हुए लोग हैं. और 100 साला जश्न के मौके पे हम ये संकल्प लें कि जिन मूल्यों सिद्धांतों के लिए सर सैयद साहब ने इस महान यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं. आज मुल्क जिस फासीवाद के शिकंजे में फंस गया है उसका प्रतिरोध करने के लिए यदि हम सब लोग काम करेंगे तो ये सर सैयद जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम एक महान मकसद में कामयाब हो सकेंगे. मैं आप सबको लाल सलाम कहता हूँ. शुक्रिया. साहब भक्त सागर जी, जरा आपको अक्सर वासी साहब को सुनना है. मैं चाहता हूँ ये देखिए बड़ी कुर्बानियों के बाद बड़ा वक्त लेकर यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं. अगर हम बिल्कुल इस तरह करें ठीक नहीं है. मेरे लिए भी तो मेरी दरखास्त है. बहुत बहुत धन्यवाद हाजी हारून साहब. आपके इस प्रयास को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ क्योंकि शिक्षा के प्रति आपका हमेशा से ही एक रुझान सकारात्मक रहा है. और शिक्षा जहाँ पर होती है वहीं पर उन्नति होती है, जहाँ शिक्षा होती है वहीं पर प्रगति भी होती है. और इसलिए मैं इस 100 साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. संपूर्ण बौद्ध समुदाय से मैं उनको बहुत सारी शुभकामना देता हूँ और इस प्रयास को बहुत साधुवाद देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद जी. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर खादर साजी साहब जी कि अपनी हाजी हारून साहब जी और बाकी बहुत बड़े जो कम्युनिटी लीडर्स और गोरा कम्युनिटी का लीडर्स और बाकी सब तमाम मुस्लिम लीडर्स सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. सबसे पहले जो एजुकेशन पे बात करते हैं तो लोगों को सबको शांति और प्रेम एकता करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो जो सेंटनरी में 100 इयर्स कंप्लीट हो गया. इस समय मैं आप लोगों को भी बहुत आभारी हूँ क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई लोग आपका यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए बाहर आए हैं. मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब यह नहीं ओनली फॉर मुस्लिम्स. आप लोग हमारे लिए भी, हिंदू लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों को भी, बाकी सब लोगों को भी आप
ये एजुकेशन का सुविधाएं देते हैं। भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी किया हूँ और मेडिकल सोशियोलॉजी में ऐसे पीएचडी करने का एक मौका आप लोग ने हमारे लिए दिए हैं। और बाकी सेफिया कॉलेज हैं और कई कॉलेजेस इधर हैं। हम मिशनरी लोग केरल से और बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए एजुकेशन का सुविधा आप लोग ही दिया है। सेफिया कॉलेज है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है और ऐसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। सब लोगों को आपने ये सुविधा दिया, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और समाज में शांति फैलाने के लिए और सुरक्षित देने के लिए आप लोग ये सुविधा देता है। आप लोगों को धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काजी इकबाल साहब से दरखास्त करूंगा शॉर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग माइक पास कर लें। बरकतुल्ला एजुकेशन सोसाइटी के ताउन से जो एक मुकदमा किया गया है, हम लोग और अलीगढ़ की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम हमें भी करना चाहिए था। जी आइंदा 10 साल जज मतलब अलीगढ़ के 10 साल उस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज भी एक अच्छा प्रोग्राम करने का रख रहे हैं और आप लोगों को सबको मदद किया जाए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोहरा समाज बोहरा जमात के आमिर साहब से खैर साहब से दरखास्त करूँगा। रहनुमाई फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये शानदार जलसे में जब इल्म की जिक्र हो रही है और इल्म के लिए जो साहिबान ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी ये सब जिक्र हो रही है। सर सैयद अहमद साहब को कौन नहीं पहचानता है। इल्म की जो जिक्र हो रही है तो मुझे कुरान मजीद की एक आयत आज याद आती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। दुनिया में आपको कदर बुलंद करनी है तो आपको तालीम हासिल करना ही होगा। बिना तालीम दुनिया में कहीं भी अपनी कदर बुलंद नहीं हो सकती है। आज अपन हिंदुस्तान में रहते हैं और अपन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये अपनी गर्दन थोड़ी भी ये ऊंची है इसलिए ही है कि अपने बुजुर्गान दीन ने ये तालीम के लिए इतना शानदार माहद कायम किया हुआ है। तो ये जब इल्म की जिक्र हो रही है और वक्त की पाबंदी भी जरूरी है, क्योंकि अपन स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे तो वहाँ पीरियड का वक्त मुकर्रर होता है, वही मुकर्रर वक्त पे शुरू होता है और खत्म होता है। तो मैं इस वक्त मुझे शेर याद आ रहा है, ये पढ़ के मैं अपने जो तकरीर है उनको खत्म करता हूँ। करने से पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये तकरीब में याद किया। अल्लाह सुब्हानहू सबको जज़ाए खैर अता करे। एक शेर है, गोहर की जो ख्वाहिश है तो गोहर की जो ख्वाहिश है तो गौवा से है लाजिम, मोती कोई खुद लबे दरिया नहीं आता। इल्म पढ़ना है तो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना ही होगा। आप ये कहिए कि मैं घर में बैठा बैठा आलिम हो जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इनके लिए बस यही मैं ये खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा अपन मुस्लिमीन को तौफीक अता करे कि दुनिया में जितने उलूम फनून हैं वो सब अपन हासिल करके कौम की और अपने मुल्क की खिदमत में हाथ पर वाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कीमती नसीहत मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अभी दारुल उलूम ताजुल मसाइल हसन साहब से दरखास्त करूँगा। सबसे पहले तो हम सब अली हारून साहब के वो शुक्रगुजार हैं कि वो तालीम और तरह के जलसात के इनेकाद को आसान बनाते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ आधा मिनट लूँगा क्योंकि एक बहुत अहम मालूमात जमा की थी मैंने, इसका जिक्र नहीं हुआ है कि शाहजहां बेगम ने भी बहुत ज़बरदस्त मदद की थी सैयद की।
उसके बारे में सैयद सलमान नदवी ने हायत शिबली में लिखा है कि जब सर सैयद वापस तशरीफ ला रहे थे हैदराबाद के कामयाब दौरे से, तो अली हसन साहब जो नवाब सज्जद हसन खान के छोटे बेटे थे, वो शिबली से भी और सर सैयद से भी बहुत मुतासिर थे और किताबें मंगाकर मुताला किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि नवाब सज्जद हसन खान तो मुखालिफ थे तहरीक के, जो अहवाल उस जमाने में सुना करते थे, लेकिन जब वो तशरीफ लाए तो नवाब साहब का इंतकाल हो चुका था। शाहजहां बेगम थी, ये बात है 1891 की। शाहजहां बेगम भी इससे मुतासिर थी, लेकिन अली हसन साहब ने बहुत समझदारी से जो इम्तियाज शाह वजीर से उससे कहा कि शाहजहां बेगम से कहो कि अगर सर सैयद जो हैं उनके अकायद जो भी हों, लेकिन बड़े बड़े अंग्रेजों से उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, तो शाहजहां बेगम ने सरकारी तौर पर मेहमान कहलाएंगी तो अंग्रेजों की असुलगोई हासिल होगी। तो शाहजहां बेगम ने पसंद किया और वो ठहरे। वो फिर जब सर सैयद से मुलाकात हुई और सर सैयद ने मुसलमानों के हवालों की बताई, शाहजहां बेगम कांप गई। वो 10,000 रुपये 1891 में 10,000 रुपये अपनी तरफ से और 10,000 रुपये जागीरदारों की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर तारिक जाफर साहब से दरखास्त करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हाजी हारून साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अलीगढ़ के 100 साल होने पर ये तकरीब आयोजित की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अलीगढ़ और अलीगढ़ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जितना भी दुनिया भर में लिखा गया है वो सब बिखरा सा है, मगर एक काम भोपाल में हुआ है, वो हमारी भोपाल की शान डॉक्टर रजिया हामिद साहिबा ने किया है, जो पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। वो कारनामा है सर सैयद अहमद नंबर। इससे पहले भी 2 किताबें अलीगढ़ मेरा चमन अलीगढ़ नंबर निकाल चुकी हैं। सर सैयद अहमद नंबर इतना ज़ख़ीम है, ज़ख़ीम लफ्ज़ के माने को वसत मिल गई है। इस किताब से आपको सर सैयद और भोपाल के रिश्ते का एहसास होगा। मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा 1 सेकंड में। मैं 4 साल बरकत भोज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। उस वक्त 2 बातें मुझे बहुत, जो लोग एक्सपर्ट पूरे हिंदुस्तान से आते थे, वो जब भोपाल घूमने जाते थे कि चले खाना वाना खाने के बाद, तो ये रोशनपुरे तक तो लोग बाग सोते हुए मिलते थे, लेकिन रोशनपुरे के बाद पूरे भोपाल में सब जगह लोग जागते हुए मिलते थे। तो वो एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा, अलीगढ़ के लोग भी थे, जामे मिल कि भाई ये क्या है? मैंने साहब ये रज जगह है। उनका कहना ये था, देखिए पूरी दुनिया में अगर तरक्की करना है तो आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो ये बात उन एक्सपर्ट्स की दबानी। और दूसरी बात, हमारे जो गवर्नर साहब थे, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जितना भी फ्रीडम फाइटर्स और जो भी काम अलीगढ़ वालों ने मुस्लिम ने किया है, उसके बारे में किताब लिखी है। कलीम कर्रार साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको एक चीज शायद ये चीज मालूम होगी, उनसे भी कहा गया था कि इस किताब के लिए जल्दी से जल्दी इजरा कराएं। आखिर में मैं आप सब लोगों को शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर हसन मसूद साहब से दरखास्त करूँ। नाज़रीन, मैं पहले तो मर्तज़िला एजुकेशन सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस जलसे का एहतमाम, लेकिन एक दरखास्त करता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि हमें ये सोचना है कि अलीगढ़ के बाद हमारी कामयाबियां और इस अरसे में हमारी नाकामयाबियों का एक मुहासबा करना है, जायजा लेना है और आगे के लिए लाहे अमल तैयार करना है। तो मैं जनाब हारून साहब से दरखास्त करूंगा कि आइंदा इस रस्मी या उर्स की तरह जलसा न किया जाए, बल्कि इस तरह जलसा किया जाए कि अब हमें क्या करना है। दूसरी बात जो सुल्तान जहां अलीगढ़ के हवाले से बहुत कही गई, सलातीन या हुक्मर आपके पास पैसा होता है तो दे देते, लेकिन एक तरफ जिक्र नहीं किया किसी ने
کہ سلطان جہاں نے اپنے بیٹے حمیداللہ خان کو علی گڑھ یونیورسٹی ہاسٹل میں رکھ کے پڑھوایا، جبکہ اس زمانے میں حکمراں کے لیے اجمیر میں ایک کالج کھولا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں حکمراں کے بچے پڑھنے جاتے. شکریہ. اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم لوگوں کو صبح سے انتظار تھا، بلکہ ہم لوگ کل تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھے اور ہمیں جو باتیں سننے کو ملی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یقیناً اگر آپ کی موجودگی ہمارے بھوپال کے پروگرامز میں ہوتی رہی تو ہم لوگوں کے جو نئے ذہن کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں کافی روشنی پیدا ہوگی. ہمارے بیچ میں آج اس پورے پروگرام کے چیف گیسٹ کی حیثیت سے جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب موجود ہیں، جو موجودہ چانسلر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی کے جودھ پور کے، اور علی گڑھ سے تعلیم یافتہ، اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستگی رہی، وہاں پر آپ پروفیسر رہے، اور اس کے بعد آج میرے خیال سے ہندوستان کا کوئی ادبی ایسی کمیٹی، نیشنل لیول کی کمیٹی ایسی نہیں ہے جس میں آپ ممبر یا ایکسپرٹ یا چیئرمین کی حیثیت سے نہ ہو. میں بہت ادب سے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں. اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان حضرات، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ سب یہاں پہ ہارون صاحب کے قبضے میں تھے، اور ہارون کی ہماری تاریخ میں اہمیت یہ ہے کہ ہارون کے بغیر موسیٰ کی پیغمبری بھی پوری نہیں ہوتی. تو انہوں نے سب کو سجایا، آراستہ کیا، موسم کی خرابی کے باوجود آپ سب تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سال پورے ہو گئے. جو ابھی مسعود صاحب کہہ رہے تھے، یہ جشن کا موقع بھی ہے اور احتساب کا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سر سید تھے تو ہم یہاں ہیں، سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. یہ ایک سوال ہے جسے سوچنا ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ سر سید کے انتقال کو 122 سال سے زیادہ ہو چکے. زمانی اعتبار سے ہم سب سر سید سے بہت آگے، لیکن کیا واقعی ہم سر سید سے آگے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم سر سید سے آگے تو کیا، ان کے پیچھے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بہت پیچھے. یہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ پہلی الیکٹڈ چانسلر جو ہیں ایک خاتون کو بنانے والے علی گڑھ والے تھے. یہ وہ علی گڑھ والے تھے جن کے جو مسلمان تھے اور جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور جن کی روزانہ گھیرا بندی یہ کی جاتی ہے کہ یہ اپنی عورتوں کو کوئی موقع نہیں دیتی. جی ملکہ وکٹوریہ اگر چانسلر رہی ہوں گی کہیں کی تو وہ اعتبار عہدہ رہی ہوں گی، ایکس آفیشیو پوزیشن میں رہی ہوں گی، لیکن سلطان جہاں بیگم جو تھیں وہ بنیادی طور پر منتخب الیکٹڈ چانسلر تھی. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسرے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کیریکٹر کے بارے میں ہمارے دوست وزیر انصاری کہہ رہے تھے. میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں عالم صاحب کی موجودگی میں کہ بوہرا کمیونٹی مسلمانوں میں مائنورٹی ود ان مائنورٹی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ مدت تک اگر علی گڑھ کا کوئی چانسلر رہا ہے تو بوہرا کمیونٹی کے پیشوا رہے جی. اور منٹو سرکل جو کہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے علی گڑھ کی تاریخ میں، اس کا نام ہی سید طاہر سیف الدین کے نام پر ہے، ہم سب جانتے ہیں. صاحبو میں یہاں پہ وقت نہیں ہے، موسم بھی دغا دینا چاہتا ہے.
वो तो हारून साहब का तसर्रुफ रूहानी है, जिसकी वजह से कि आप क्या में भीगे नहीं है। सिर्फ मुझे ये अर्ज करना है कि ये याद रखिए, सर सैयद और उनके रुफ़ा ने 19वीं सदी में एक मंसूबा बंदी की कि 20वीं सदी में उनकी आने वाली नस्लें किस तरह से खैर व आफियत से रहें और उनकी सलाह व फलाह का इंतजाम किया। सवाल ये है, क्या आपने कोई ऐसी मंसूबा बंदी की है? ये सवाल है आपके सामने जो जी माफ कीजिएगा, हमारी बड़ी अजीब हालत है। मैं माफी के साथ चाहता हूँ, उगरे मधा को थोड़ा सा गिले की इजाजत दीजिए। आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट का रोना रोएंगे। मैं पूछता हूँ, हमारा नबी जब गारे हिरा से सूए कौम आया था तो वो नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म लेकर नहीं आया, इक़रा का मूल मंत्र लेके आया। फिर आपको बताना है, ये आपको सोचना है, इसका जवाब आपको देना है। दूसरे, दुनिया में एक बात को खूब याद रखिए कि दुनिया में हर चीज बदलती है, नहीं बदलती है तो सुन्नत इलाही नहीं बदलती। और सुन्नत इलाही क्या है? जब अल्लाह ने सूरह बकरा में मौजूद, देख लीजिएगा, जब अल्लाह ने तख्लीक़ आदम का फैसला किया और फरिश्तों को बताया, तो फरिश्ते जो आमन्ना और सद्दक़ना कहने वाले थे, हमेशा उन्हें थोड़ा तकल्लुफ़ था कि अल्लाह ने उस पर फरिश्तों से कहा चीजों के नाम बताओ, फरिश्ते नहीं बता पाए। आदम से कहा, आदम ने फरफर बता दिए। उसके बाद अल्लाह ने आदम फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो और इस तरह रोज़े अदल अबद और आबाद तक के लिए, क़यामत तक के लिए अपनी इस सुन्नत को दवाम बख्श दिया, अमर बना दिया कि जो नहीं जानते हैं उन्हें झुकना पड़ेगा उनके सामने जो जानते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे ये सोचिए कि आप जब तक जानते थे, दुनिया आपके सामने जानने में तलम्मुस तय करती थी। अब आप क्या जानते हैं जो कोई आपको खातिर में लाए? जी माफ कीजिएगा, इंतकाम लेना भी नहीं जानते जी। ताली जानते हैं या गाली जानते हैं? इन दो के अलावा कोई चीज नहीं जानते जी। ये एक सवाल है, सर सैयद ने हमें इसी चीज से निकाला। हाली की मुसद्दस पढ़िए और अपने माजी के उतार चढ़ाव को देखिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या करना है। शिवली को पढ़िए जी, चिराग अली को पढ़िए, आपको देखना चाहिए कि क्या है। सर सैयद का मामला ये है कि सर सैयद, माफ कीजिएगा, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। सर सैयद का आशिक़ सादिक़, लेकिन उनके मजहबी ख्यालात से पूरी तरह इस्तेमाल, मगर इसके बावजूद फिर आशिक़ सादिक़ क्यों? क्योंकि मुसलमानों के यहाँ तो दो ही लोग होते हैं, मोमिन होते हैं, काफिर होते हैं। 68 फतवे आए उनके कुफ्र के बारे में, लेकिन इसके बावजूद मैं सर सैयद का आशिक़। क्यों आशिक़ हूँ? कि सर सैयद ने जो मजहबी ख्यालात का इजहार किया उससे उम्मत ने इत्तफाक नहीं किया, लेकिन सर सैयद ने जब कॉलेज में दीनियात का निसाब शुरू किया तो उन्होंने अपने ख्यालात को निसाब का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोसवी को खत लिखा कि कॉलेज में निसाब दीनियात का शुरू करना चाहता हूँ, किसी राज़िक़ुल अक़ीदा आलिम को भेज दीजिए। अपने ख्यालात को निसाब में शामिल नहीं किया। वो कह सकते थे मेरा कॉलेज है, जिसे शामिल आना है तो आओ और इस निसाब को पढ़ो, लेकिन वो जानते थे कि ये मेरा इज्तिहाद है, इस पे उम्मत का इजमा नहीं। और इससे हमें उन तमाम लोगों को जो कि बुनियादी तौर पे अपने ख्यालात की राह में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ये समझते हैं कि जो मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ, उन्हें सर सैयद से यही सीखना चाहिए। एक आखिरी बात,
यहाँ हमारे ईसाई मजहब के पेशवा बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब इनका शुक्रिया अदा करें कि एमएओ कॉलेज में नहीं, मदरसतुल उलूम मुसलमानान से लेकर एमएओ कॉलेज तक वो ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने के अलीगढ़ कॉलेज के अंदर नौकरियां की, तालीम दी और हमें इस काबिल बनाया कि आज हम 100 साल पूरे कर पाए। ये हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं। और एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये बैठे हुए इनकी मौजूदगी में सर सैयद ने सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं लिखी, इंजील की तफसीर भी लिखी और बाइबल की तफसीर जो है उस पर बाकायदा तौर पे एक जर्मन जेसुइट प्रीस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन डब्ल्यू ट्रोल ने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन से पीएचडी किया और सर सैयद की तफसीर की तारीफ की। और ये वो तारीफ है जो कि एक ईसाई पादरी ने एक मुसलमान के काम की। क्यों कि सर सैयद ने बाइबल को इस्लाम की ऐनक लगा के नहीं देखा, बल्कि उसका एक ऑब्जेक्टिव स्टडी की, एक मारूफी मुताला किया। हमें ये भी समझना चाहिए, आज बहुत इंटरफेस की बातें हो रही हैं, लेकिन इंटरफेस की बुनियाद मुसलमानों में डालने वाले सर सैयद हैं, हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए। सर सैयद अलीगढ़ ने क्या क्या दिया है ये हम सब जानते हैं। इल्म हो या फिल्म हो, खेल हो या साइंस हो, दुनिया में हर चीज में अलीगढ़ ने अपना रोल अदा किया है, अलीगढ़ अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन साहिबो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेली जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी जरूरतों को पूरी नहीं करती। अब एक बहुत बुरा वक्त आया है, हम बता दें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तालीम और सेहत बाजार के सुपुर्द सरकार ने कर दी, लेकिन जिसे कहते हैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए और खैर में शर में खैर का पहलू तलाश करना चाहिए। जब सरकार ने एक दफे तालीम को आजाद कर दिया है तो हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम आधी रोटी खाएं मगर अपने बच्चों के लिए स्कूल ये हमारे लिए सोचने की चीज है, इस पे हमें सोचना चाहिए। हमारी परेशानी ये है कि हम, माफ कीजिएगा, तारीफें तो करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर करने के जो काम है वो काम नहीं करते हैं। हमें इन पर सोचना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हर तरह के लोग पैदा किए हैं और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कोई तब्दील नहीं की है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों से ज्यादा, माफ कीजिएगा, बच्चियों को पढ़ाएं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आजकल वो नारेबाजी चल रही है कि बेटियां पढ़ाओ वाली चल रही है, वो नहीं कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दुनिया में जब तालीम का हासिल करना तो बड़ी बात है, हरफे इल्म दानिश सुनने की सबको इजाजत नहीं थी। कुछ लोगों ने तालीम पर अपनी इजाजत कायम कर रखी थी, हेजेमनी बना रखी थी। अगर हरफ इल्म हरफ दानिश किसी के कान में पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा गरम गरम उसके कानों में डाल दिया जाता था। एक ऐसे वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर और कब्र तक इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। इल्म और हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहाँ से मिले वहां से आए। और कहा नहीं, करके दिखाया। हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहां से मिले उसे हासिल करना चाहिए। उसकी सबसे बेहतर नजीर जो है वो कौन सी है? जब जंगे बदर के कैदियों की रिहाई का फैसला किया। क्या फैसला किया गया? या तो फिदिया दो, पेनल्टी दो और रिहाई पा जाओ, या फिर मदीने के मुसलमान बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ और रिहाई पा जाओ।
साहिबो ये कुफ्फारे मक्का जो थे, मक्के वाले जो थे, ये काहे के लिए आए थे? ये तो रसूल को और क्या दीन रसूल को खत्म करने के लिए आए थे। ये कुरान को मानते नहीं थे, हदीस को जानते नहीं थे। फिर माफ कीजिएगा, इन्होंने क्या पढ़वाया गया होगा? क्या पढ़वाया गया होगा? इनसे वही पढ़वाया गया जिसे हम आप आज गिनती, पहाड़े और हुरूफ तहज्जी, अक्षर ज्ञान कहते हैं, यानी जिसे सेकुलर और मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं। जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने जायज रखा वो किसी के कहने से नाजायज नहीं। और दूसरी बात वो ये, अल्लाह के रसूल ने इस वाक़े से एक बात और साबित कर दिया, और वो लोग जो तालीमी इदारे चला रहे हैं, और खासतौर से जदीद तालीम के इदारे चला रहे हैं, उनके लिए उसमें सबक है। अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि स्कूल चलाने वालों को टीचर का धर्म नहीं देखना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। यह बुनियादी तौर पे हमें सीखना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये बात नहीं करना है, वो ये कि लड़कियों की तालीम, और वो अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। रसूलुल्लाह माँ नहीं थे, बाप थे। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि वो हर मुसलमान बाप को जो बेटियों वाला है ये पैगाम देना चाहते थे, उसके लिए ये हुक्म देना चाहते थे, उसके लिए ये नागुज़ीर बनाना चाहते थे कि वो अपनी बेटियों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाएं, क्योंकि जो आज की बेटियां हैं वही तो कल की माएँ होंगी। अगर आज तालीम याफ्ता नहीं दिलाई जाएंगी, तालीम याफ्ता नहीं बनाई जाएंगी, तो कल किस तरह से उनकी गोदें जो हैं आने वाली नस्लों के लिए तरसगा और आमाजगा बन पाएंगी। जी, ये रसूल का पैगाम है। आजकल माफ की जगह जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, आज से 10-15 साल पहले आता था, तो हम मुसलमान अखबारों में ये चीखते थे कि क्या हो रहा है, ये मुसलमान लड़के जो हैं दूसरी कौम के लड़कों से क्यों पिछड़े जा रहे हैं। अब इधर 5-7 साल से आरिफ अजीज साहब की परेशानी ये है, परवेज बारी की परेशानी ये है कि क्या परेशानी है, ये मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों से क्यों पिछड़े जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मैं खुश होता हूँ जब देखता हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से सबकत लेके जा रही हैं, क्योंकि मुझे यकीन है जिस कौम में माएँ तालीम याफ्ता होंगी उसके बच्चे कभी जाहिल नहीं रहेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बिलावली ये बात नहीं कही थी, इसीलिए कही थी। मैं एक दफा फिर हारून भाई का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने बुलाया, और माफ कीजिएगा पैगंबर की आवाज से लब्बैक ना कहना कुफ्र है, और मैं कुफ्र का मुर्तकिब नहीं हो सकता था। बहरहाल इन्होंने आपके लिए जो किया है, एक तरह से फूड फॉर थॉट, थॉट फॉर फूड, दोनों का इंतजाम है, ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और भोपाल जो है उससे मैं खास अहमियत मुझे उसकी है और खास उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये वो पहली जगह है जहाँ पर के हुक्मरान ने लड़कियों का स्कूल खोला और ये हुक्म दिया कि जो जागीरदार, दरबारदार उमरा और रऊसा में बच्चियों को नहीं भेजेगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी और उसको महरूम कर दिया जाएगा। मैं बेगम सुल्तान जहां बेगम को, शाहजहां बेगम को, सबको सलामत करता हूँ। माफ कीजिएगा, यहाँ पे नवाब साहब की बात हुई, मैं नवाब साहब का कदरदान हूँ। जाहिरी बात है कि बड़े अजमत वाले आदमी थे, लेकिन ये मत भूलिए कि नवाब साहब के हिस्से में जो नवाबी आई थी वो एक औरत की अता थी। माफ कीजिएगा, वो विरासत में नहीं आई थी, अता के नतीजे में आई थी। मैं उन औरतों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे नौजवान पैदा किए और उन नौजवानों ने हिंदुस्तान को एक नई सूरत देने की कोशिश की। और बाद में जब वक्त आया कि दुनिया दो हिस्सों में बट जाए, हिंदुस्तान की तकसीम हो जाए, तो उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और हिंदुस्तान को एक नई रोशनी
और नया रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला हमें और आपको भी कामयाब बनाए। एक बात मैं यहाँ पे माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट और दूंगा, वो ये कि यहाँ कुछ हालात का तस्करा किया गया है। हालात से परेशान मत, खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुदा पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा और खुदा पे भरोसा हर कामयाबी की कुंजी है। और याद रखिए, वो कौम जो सानह करबला के बाद जिंदा रही, जो सुकूत बगदाद के बाद जिंदा रही, जो 1857 के बाद जिंदा रही, जो 1947 के बाद जिंदा रही, वो 2002 और 1992 के बाद भी जिंदा रहेगी, रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी। ये वक्त आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात है कि दूसरों के लिए मदद का जरिया बनिए, दूसरों के लिए मनफियत का जरिया बनिए। एक बात मत भूलिए, और खासतौर से मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आपको बड़ी शिकायत है गैरों से, लेकिन आप ये मत भूलिए, आप बड़े नाज से कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, हमने इस मुल्क को ताजमहल का हमने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, ताजमहल का हुस्न दिया है, लाल किले की पुख्तगी दी है, शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस दिया है, मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन का इरफान अता किया है। मगर नौजवान दोस्तों, ये मत भूलो, जब तक ये दे सकते थे उस वक्त तक जिल्ले भी तुम्हें तस्लीम किया गया था। आज तुम क्या दे रहे हो जो तुम्हें कोई खातिर मिला है? बहुत 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 शुक्रिया मोहतरम अख्तरुल वासिफ साहब। इससे पहले कि मैं इज़हार तशक्कुर के लिए जनाब कलीम साहब को आवाज दूं, इस बीच हमारी भोपाल की कुछ ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में नहीं रही जो बहुत इम्पोर्टेंट थी भोपाल के लिए, जिसमें सैयद मोहम्मद अफजल साहब जो IPS थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, और अलीग थे, काफी सीनियर अलीग थे। वो जिस महफिल में चले जाते थे वो एक अजीब सा समा बांध देते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह जनाब शब्बीर बेग साहब, जिनका एजुकेशन की लाइन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा, अलीगेरियन थे। इसके अलावा सैयद शकील साहब, जफर अहमद सिद्दीकी साहब, अशफाक मुशदी साहब, इन सभी को ये प्रोग्राम इन सभी को इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर की तरफ से खिराज अकीदत पेश की जाती है। मैं इससे पहले कि मोहम्मद कलीम साहब इज़हार तशक्कुर के लिए तशरीफ लाएं, मैं अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तराना टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं ताकि हम लोग तराना पढ़ें। और सोसाइटी के सदर मोहतरम हाजी हारून साहब की जानिब से डेस्क पे बैठे हमारे तमाम मेहमान खुसूसी हजरात, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मोहतरम अख्तरुल वासिफ साहब का खासतौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दूर से तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने चार चांद लगा दिए। इसके बाद हमारे इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार के आयोजन में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया और बहुत मेहनतें की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पे MW अंसारी साहब, इकबाल काजी साहब, मोहम्मद आफाक साहब, इकबाल मसूद साहब, आरिफ अजीज साहब और हमारी जवान के, हमारी सोसाइटी के मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आमिर जैद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जुबैर, मौलाना यासिर साहब, मौलाना राफे, तमाम जितने भी हमारे सोसाइटी के जिम्मेदार हैं, उन सभी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त कम है, मैं यही अर्ज करूंगा कि आप तमाम साहिबान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम में आप सब तशरीफ लाए और हमारे खास तौर पर डॉक्टर मारूर हसन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। चार निगाहे दर्द सुन पाबस करके सुए संभुल। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। रोता के हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दर्द के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ये दर्द जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये दर्द जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरफ जुबानों का, ये खुल्द बड़ी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्तार जहाँ बर्बाद जहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्तार जहाँ बर्बाद जहाँ। गाए हैं वफा के गीत जहाँ, चेहरा है जुनून का साथ जहाँ। गाए हैं वफा के गीत जहाँ, चेहरा है जुनून का साथ जहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरे कैची है, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं। इस बज़्म में आंख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक तोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोच यहाँ, और सारे जहाँ का साथ यहाँ। ज़र्रात का बोझा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। ज़र्रात का बोझा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। और अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जवा पर बरसेगा, हर कोई ग्रह पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर शख्स समन पर बरसेगा, उस अपने चमन पर बरसेगा, पैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर पर बरसेगा, हर कचरे पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। और आप सभी से दरख्वास्त है कि नेशनल एंथम के लिए आप अपनी जगह जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा।
सपना में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत शुक्रिया। अब इदारे तशक्कुर के लिए जनाब